के इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर और IQAC के कोऑर्डिनेटर तथा जंतु विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष और मेरे गुरु डॉक्टर कमल सक्सेना सर प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम के निर्बाधित और सुचारू संचालन के लिए सभी श्रेष्ठ, शिष्ट और विशिष्ट प्रतिभागियों से आग्रह करता हूँ कि आप अपना माइक बंद रखें, स्क्रीन शेयर न करें, अपने सुझाव और समस्याएं चैट बॉक्स में पोस्ट करें। वेबिनार के समापन के साथ चैट बॉक्स में ही फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर किया जाएगा, जिससे आप अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकें। अतः आपसे अनुरोध है कि वेबिनार में पूर्ण समय आपकी भागीदारी रहे और आप ध्यान से विद्वान वक्ताओं को सुने। अब मैं वेबिनार में उपस्थित प्रख्यात वक्ताओं, गणमान्य शिक्षक साथियों और प्रतिभागियों के स्वागत और उद्बोधन के लिए बरेली कॉलेज के पूर्व यशस्वी हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अनुराग मोहन सर को आमंत्रित करता हूं। सर, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू एंड ओवर टू यू। राजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बोले आप, वेरी नाइस। थैंक यू सर। Dear friends, good morning. On behalf of Bareilly College, Bareilly, I welcome you all in the national webinar titled Online Education and its Amalgamation with Classroom Education, organized by IQAC cell of Bareilly College, Bareilly. As you all know, teaching has always been regarded as a noble profession, and to teach students in classroom has always inspired educationists. But for last few years, online education has evolved. It may have its merits and demerits. With the advent of COVID-19 pandemic, we are forced to rely more on online education or virtual methods. In coming times, online education had lion's share in academics. I sincerely hope that today's lecture by the experts will be able to throw light on online education, and I will also request the seasoned panelists to suggest ways and means for different interactions between teacher and taught without physical presence in college or classroom, and without compromising the standard of learning. We are privileged to have a distinguished panel of speakers. I take this opportunity to welcome our chief guest, Dr. Rajesh Prakash, Regional Higher Education Officer of Bareilly and Moradabad region. Dr. Prakash, as you all know, is a fine gentleman, an academician of repute, along with an able administrator. Before assuming the charge of regional director, he ably administered various colleges in the capacity of principal. Sir, a very warm welcome from Bareilly College. We extend our hearty welcome to Professor B.R. Kukreti, ex-head Department of Education, MJP Roorkee University, a thorough gentleman and soft-spoken, renowned educationist. Earlier, he was professor at Garhwal University. Sir, it is indeed a pleasure to have you on the panel. Heartfelt felicitations, sir. I'm fortunate to have a very dear friend of mine, coordinator of IGNOU Bareilly College Center, Dr. Kamal Kumar Saxena. He has been pioneer in distance education and has an experience of more than 30 years in open university concept. Kamal ji, आपका हृदय से इस्तकबाल. I extend a very warm, cordial welcome to all the learned participants in this webinar. I am sure that today's deliberation by our learned speaker will pave the way for measured and realistic innovative methodology which can substitute classroom studies effectively. All the best for the webinar. Thanks for giving me space. Thank you very much. Thank you very much for your kind words.
विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इस कार्यक्रम में 3 हमारे वक्ता हैं। आदरणीय राजेश प्रकाश जी, शिक्षा अधिकारी बरेली प्रक्षेत्र, हमारे मुख्य अतिथि हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा पहले व्याख्यान के लिए। उनके बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेश प्रकाश started his teaching career as lecturer in zoology from Government College Purolator, Sarakasi. In year 1999, he joined Government Raja PG College, Rampur, and after serving for more than 8 years, he was transferred to Government College, Jalesar. He was promoted as principal and joined Government PG College, Chirsaganj, Firozabad. In 2018, he was appointed as Regional Higher Education Officer, Bareilly, and discharging his duties till date. Dr. Rajesh has supervised 5 PhD students and completed 1 major research project funded by UGC. He has acted as a member and coordinator of various college committees, including IQAC, NAC, RUNSA, etc., and acting as convener and member of several committees formed by universities and district administration. Sir, I welcome you. Kindly bless us. Dr. Rajesh Prakash, sir, over to you. Yes, sir. Thank you, sir. Am I audible? Yes, you are audible perfectly, sir. Okay. Thank you, Dr. अनुराग मोहन सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर इस माध्यम से जुड़ने के लिए, और पहली बार मैं जुड़ रहा हूँ इसमें आप लोगों के बीच में, और ये बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने सजेस्ट किया हुआ है। एक्चुअल क्या है कि जो वेरियस टॉपिक्स इस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पे शासन द्वारा निर्गत किए गए हैं, उसमें से अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चाएं होनी हैं, और उन चर्चाओं के माध्यम से ही हम अपनी बात कह सकेंगे उनसे कि यहाँ पे इस चीज को जो है कम किया जाए, मेरिट और डिमेरिट्स को किस तरीके से देखा जाए। तो सर्वप्रथम मैं आज के इस वेबिनार जो कि है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑनलाइन एजुकेशन इन इट्स एमलगमेशन विद क्लासरूम एजुकेशन, तो इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं आज के वेबिनार के पैटर्न मिस्टर देवमूर्ति साहब, कीनोट स्पीकर प्रोफेसर BR कुकरेती साहब, प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराग मोहन, IQAC इंचार्ज डॉक्टर KK सक्सेना साहब, NAC इंचार्ज डॉक्टर आलोक खरे साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर, और वेरियस एमिनेंट स्पीकर्स जो आज इससे जुड़ेंगे, उन सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत बधाई कि आज इस माध्यम से हम लोग अपनी बात आसानी से इस महामारी के समय में कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन दोनों समय की ज़रूरतें हैं। आज हमारी ज़रूरत पिछले 5-6 महीनों से हम लगातार ऑनलाइन एजुकेशन की प्राथमिकता पर जोर दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत को समझ रहे हैं, ताकि हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे किस तरीके से जुड़ सकें, अपनी बात कह सकें, चाहे वो पठन पाठन के बारे में उनसे शेयर कर सकें, चाहे उनसे सोशल वेलफेयर के बारे में सजेस्ट कर सकें, या पब्लिक अवेयरनेस हम किस तरीके से उनको इंटीमेट कर सकें। ये एक माध्यम है। स्वाभाविक रूप से कठिनाई आ रही है इन माध्यमों से जुड़ने में, लेकिन फिर भी एक बेहतर कंस्ट्रक्टिव प्रयास हमारा है कि हम इस माध्यम को अपने महाविद्यालयों में किस तरीके से डेवलप कर सकें, इस सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें, ताकि हम हर बच्चे तक अपनी बात कह सकें और उनको एक उचित माध्यम पठन पाठन में दे सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंतर्गत बहुत से पॉइंट्स डिस्कस होने हैं। डिफरेंट पॉइंट्स हमारे दोनों रीजन्स पे डिस्कस हो रहे हैं वेबिनार्स के माध्यम से,
बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हम लोगों को मिल रहे हैं और उन सजेशंस को हम कंपाइल करके शासन को उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे जब ये सारी सेमिनार्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत बड़ी चुनौती है इन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की, क्योंकि हमारा सेटअप जिस आधार से काम कर रहा है उस सेटअप्स को हमें कितना इम्प्रूव करना है, कितनी फैसिलिटेट करना है, कितना एनवायरनमेंट बेटर बनाना है एजुकेशन का अपने कॉलेजेस में, ये सभी लोग जानते हैं। हमें चुनौतियां जो आने वाली हैं उस पर किस तरीके से निपटना है, इस बात को भी हमें अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉइंट ये भी है कि जो विदेश के हमारे जो कॉलेजेस हैं, विदेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो यूनिवर्सिटीज भी हमारे यहाँ पे आके अपने फ्रेंचाइज या जो भी माध्यम है उससे अपने कॉलेजेस को खोलेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ने के साथ साथ हमें उस स्तर तक अपने आप को लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी व्यवस्था इसके अंतर्गत है कि हम अपने रिमोट एरियाज में किस तरीके से बहुविषयक सब्जेक्ट्स पे बात कर सकें। हम इसमें इस तरीके की इम्प्रूवमेंट है कि हम अपने कॉलेजेस में हर तरीके के सब्जेक्ट्स को ला सकें ताकि ज्यादा डिस्टेंस उन बच्चों को जो उस सब्जेक्ट्स में पढ़ना चाहते हैं दूर ना जा सकें। इस तरीके के वातावरण इसके अंतर्गत हैं। दूसरी बात, हम किस तरीके से एक फ्रीडम स्टूडेंट्स में क्रिएट कर सकें वो भी इसके अंदर है। तमाम बिंदु हैं जिन पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लोग अपने अपने विचार शेयर कर रहे हैं, अच्छे विचार भी आ रहे हैं और इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए वो भी विचार आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज किया हुआ है। मैं समझता हूं कि जितने एमिनेंट स्पीकर्स आज आपके मध्य में जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत करेंगे और वो विचार स्वाभाविक रूप से हमारे लिए एक ऊर्जा प्रदान करेंगे और इसके साथ साथ एक कंस्ट्रक्टिव सोच जो है एक प्लेटफॉर्म जरूर प्रेजेंट करेंगे ताकि हम अपने निदेशालय और शासन को उससे अवगत कराया जा सके। मैं ज्यादा ना समय लेते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि आज की जो गोष्ठी है ये स्वाभाविक रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि बहुत अच्छे स्पीकर्स आज आप लोगों के बीच में हैं और उसके साथ साथ मैं भी जो है चाहूंगा कि सर से जो भी सजेशंस यहाँ पे आते हैं, अनुराग मोहन जी से विशेष अनुरोध करता हूं कि वो सजेशंस जरूर हम पहुंचाएं ताकि हम शासन को अवगत करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बरेली कॉलेज बरेली प्राचार्य एवं उससे जुड़े हुए समस्त कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों को अपने तहे दिल से शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और योर काइंड वर्ड्स। आपने सही कहा कि चुनौतियों को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी उचित समाधान हम निकाल पाएंगे। और जैसे कि प्रस्तावित है कि विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत में खोल सकेंगे, तो उनसे कंपटीशन करना और भारी होगा और हमें कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव विचारों को लाना होगा। इसी क्रम में मैं और आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस गोष्ठी के जो बीज वक्ता हैं, कीनोट स्पीकर हैं, आदरणीय प्रोफेसर बी.आर. कुकरेती सर ने हमें समय दिया, हम उनके आभारी हैं। प्रोफेसर बी.आर. कुकरेती सर इज वेल नोन फिगर in education world. He was former head and dean Department of Education and Allied Sciences in MJP Rohilkhand University. He had more than 32 years of teaching and administrative experience. He has been performed different important duties in university like chief proctor, coordinator of several boards and committees. He had been contributed his expertise as a resource person in national and international conferences and seminars. He authored a book, Determinants of Successful Teachers. He had published more than 70 research papers in peer-reviewed national and international journals and 15 chapters in books. He had attended more than 100 national and international conferences, more than 20
students awarded their PhD under the supervision of Professor Kukreti sir. He had received several valuable awards. Sir, we are blessed to have you, and I request you kindly deliver your thoughts and bless us. So thank you so much, sir. It is over to you, Professor B.R. Kukreti sir. अच्छा, ओके, ठीक है। धन्यवाद राजेंद्र जी। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश प्रकाश जी, जो क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी हैं बरेली मुरादाबाद मंडल के, बरेली कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मोहन भटनागर जी, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कमल सक्सेना जी, और नैक स्टीयरिंग कमेटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आलोक खरे जी, मेरे मित्र डॉक्टर सुदेश सिंह जी, भाई संजीव सक्सेना जी, और सभी मेरे साथी बरेली कॉलेज के और जो भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हों। मुझे प्रसन्नता है कि बरेली कॉलेज के किसी कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका मिल रहा है। अनुराग भाई ने ये तो बताया था कि मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरी जो जड़ें हैं वो बरेली कॉलेज से हैं। मैं उनके अनुराग भाई के साथ, सुदेश भाई, संजीव भाई के साथ मैंने काम किया है बरेली कॉलेज में 87 से लेकर के और 90 तक। उसके बाद मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी गया था। तो मैं मूल रूप से अपने आप को बरेली कॉलेज का आज की डेट में भी मानता हूं। जब भी मुझे कोई भी पूछता है तो मैं बरेली कॉलेज को पहले महत्व देता हूं, बाद में गढ़वाल यूनिवर्सिटी और रोयलखंड यूनिवर्सिटी को। इसमें मैं बधाई देना चाहूंगा IQAC को और नैक स्टीयरिंग कमेटी को और प्राचार्य जी को कि उन्होंने इस बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे भी इसमें बोलने के लिए मौका दिया है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इन्होंने इसमें केवल 2 चीज़ों पे मूल रूप से महत्व दिया है। एक तो ये था कि टेक्नोलॉजी का हम किस तरह से इंटीग्रेशन करें एजुकेशन के फील्ड में, और दूसरा था कि जो हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन है उसको किस प्रकार हम न्याय संगत रूप से देश के सभी भागों में सभी वर्गों को उपलब्ध करा सके। इन 2 चीज़ों पे मुख्य रूप से इन्होंने इस पे ध्यान दिया है। और वैसे यदि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, तो नॉर्मली हम लोग सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग 3 चीज़ों के लिए मुख्य रूप से करते हैं। एक तो हम लोग जो हमारा नॉलेज है उसके प्रसार के लिए करते हैं, दूसरा जो ज्ञान है उसके विकास के लिए करते हैं, और तीसरा जो हमारा नॉलेज है उसके संचय के लिए करते हैं। देखिए, पहले समय में क्या था कि हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था जिससे कि हम अपने ज्ञान का तुरंत प्रसार कर सके। आज की डेट में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो साधन है कि अगर हमारी ये वेबिनार यहाँ पे हो रही है तो हमें चारों तरफ से जिसके पास भी हमारा लिंक होगा उस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि व्यक्ति अमेरिका में लेक्चर दे रहा कोई, तो हिंदुस्तान में हम उसको आराम से उसको सुन सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने ज्ञान का प्रसार चारों तरफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो ज्ञान का विकास टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना है। देखिए, पहले कोई भी हम अगर रिसर्च वर्क करते थे जिसमें कि न्यू नॉलेज क्रिएशन होता था, उसमें हम लोग बहुत टाइम हमें लगता था और बहुत बड़ी मुश्किल से हम नया ज्ञान का सृजन लोगों के सामने ला सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है, तब हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन, बड़े बड़े से रिसर्च, बड़े बड़े से यदि हमें कहीं से रिव्यू लेना है, कोई काम करना है, तो बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं और नए ज्ञान का सृजन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े आसानी से हो रहा है। और ज्ञान का संचय करने से संबंधित हम ये कह सकते हैं, देखिए पहले हमारे पास कुछ नहीं था। अगर ताड़ के पत्तों में लिखा हुआ है और कोई है चीज लिखी हुई है, न किताबें थी न कुछ था, और वो खराब हो गई तो फिर खराब हो गया। लेकिन आज की डेट में हम लोग जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग संचय कर सकते हैं। ये वेबिनार की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारे ज्ञान का संचय हो रहा है। आज हमने अपनी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरीज को डिजिटल फॉर्म में हम लोगों ने रख दिया है, वो हम लोग ज्ञान का संचय कर रहे हैं। और जो कुछ भी हो रहा है पूरे विश्व में उसको हम लोग ज्ञान का संचय करके, गूगल है आपका तो उसमें पूरा ज्ञान का संचय ही है। ये टेक्नोलॉजी ही
ऐसी है जिसके माध्यम से हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। अब भारत में अगर हम टेक्नोलॉजी के यूज पे बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में पर्टिकुलरली, तो हम देखेंगे कि 8वें दशक तक हम लोगों ने केवल रेडियो और टेलीविजन को ही टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया है, जो कि बड़े स्तर पर, बाकी क्लासरूम में या और कहीं तो हम लोगों ने छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का टीचिंग मटेरियल एड वगैरह का इस्तेमाल किया है, लेकिन पूरे बृहत स्तर पर हम देखें तो हमने केवल रेडियो और टीवी का यूज हम लोगों ने किया है स्वतंत्रता के बाद से, और कंप्यूटर का यूज बहुत कम इस्तेमाल किया, वो भी जो प्रोफेशनल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज की डेट में हम लोगों के पास में सभी साधन उपलब्ध हो गए और हम लोग टेक्नोलॉजी का आराम से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम टेलीविजन का क्या रोल रहा है हमारे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के रूप में, उस पर अगर प्रकाश डालें तो हम कह सकते हैं कि देखिए, भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 में टीवी हमारे यहाँ पहली बार स्टार्ट हुआ था। दिल्ली में एक छोटे से कमरे में मीडिया सेंटर बनाया गया था, उससे टेलीकास्ट हमारे कार्यक्रम किए गए। और एजुकेशन के फील्ड में जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था वो अक्टूबर 1961 में इस्तेमाल किया था, जबकि सेकेंडरी एजुकेशन टेलीविजन प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें दिल्ली के कुछ सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेलीविजन का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1966 को टेलीविजन के माध्यम से कृषि दर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, जिसमें कि किसानों के लिए कृषि की शिक्षा देने की बात कही गई थी और वो टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों ने की थी। 1 अगस्त 1975 को एक साइट प्रोग्राम चला था जो कि नासा और इसरो के माध्यम से भारतवर्ष के 6 राज्यों में और 20 जिलों में 2400 गांव में ये प्रोग्राम चलाया गया था। ये भी अडल्ट एजुकेशन के लिए प्रोग्राम चलाया गया था और इसमें कुछ देर के लिए ये टेलीविजन पे प्रोग्राम चलता था और उस के माध्यम से जो हमारे अडल्ट लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। 1982 में इनसेट प्रोजेक्ट चला था, जिसमें कि ग्रामीण लोगों को और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन दी गई थी टेलीविजन के माध्यम से। और 15 अगस्त 1984 को यूजीसी का जो कंट्री वाइड क्लासरूम है वो प्रारंभ हुआ था, जिसके माध्यम से कि दिन में यूजीसी कुछ टाइम के लिए कंट्री वाइड क्लासरूम चलाती थी और उसको हम टेलीविजन के माध्यम से देखते थे। मई 1961 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और दूरदर्शन ने टेलीकास्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया था, जिसमें कि इग्नो जो कार्यक्रम कुछ तैयार करती थी और उन कार्यक्रमों को टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित किया जाता था। और इसके बाद में 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल शुरू किया गया था, जो कि एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। टेक्नोलॉजी को, टीवी को अगर एजुकेशन फील्ड में हम यूज करते थे तो वो 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन के माध्यम से हम लोगों ने किया था। सितंबर 2004 में एडुसेट प्रोग्राम चला था, एडुसेट लॉन्च हुआ था, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसरो के माध्यम से ही हम लोग इसमें जो एजुकेशन के कार्यक्रम है वो हम लोग चलाते थे। और ये एडुसेट 2014 तक रहा। अब इसके जगह में जीसेट 10 आ गया है, जिसमें कि ज्ञान दर्शन के 4 चैनल चलाए जाते हैं। और इसके बाद तो फिर जैसे जैसे टीवी टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई है, फिर आज हमारे पास में केबल टीवी भी है, सैटेलाइट टीवी भी है, मोबाइल टीवी भी है, जिसके माध्यम से कि हम लोग टीवी का उपयोग करते हैं एजुकेशन के फील्ड में। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जो कि हमने शुरू में यूज किया है, वो है रेडियो का भी हमने काफी इस्तेमाल किया एजुकेशन प्रसारित करने के लिए, आप लोगों को देने के लिए। जो भारत में रेडियो प्रारंभ किया था, वैसे तो 1923 में एक रेडियो क्लब था मुंबई में, उसने पहली बार ब्रॉडकास्ट किया था और लेकिन उसने एजुकेशन की कोई प्रोग्राम नहीं किए थे। फिर 1927 में एक इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी थी, उसने फिर रेडियो का ब्रॉडकास्ट किया था। लेकिन
हमारे जो गवर्नमेंट के नियंत्रण में आया जो रेडियो, वो 1947 में आया, जबकि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, AIR की स्थापना हुई। और उसके बाद में सोचा गया कि किस प्रकार से रेडियो के माध्यम से हम अपने लोगों को शिक्षा के बारे में अवेयर करें। 1956 में रेडियो के माध्यम से एक अडल्ट एजुकेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से कि पूना के 144 गांव में, पूना के आसपास के 144 गांव थे, और उसमें कृषि से संबंधित ज्ञान प्रसारित किया रेडियो के माध्यम से। और 1965 में एक यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, जो कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज है, जिसको कि आज IFLU के नाम से जानते हैं, उसने और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम प्रारंभ किया था। और उसके बाद 1979 और 80 में एक लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम रेडियो के माध्यम से प्रारंभ किया था, जो कि जयपुर और अजमेर में, राजस्थान में चलाया गया था। इसमें हिंदी के प्रोग्राम, हिंदी भाषा को सिखाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। और फिर 1992 में इग्नो AIR ब्रॉडकास्ट प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि इग्नो के कार्यक्रमों को रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाता था। और उसके बाद 1998 में इग्नो और AIR इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग प्रारंभ हुई थी। एक तरफा था पहले, लेकिन 1998 में इग्नो और ऑल इंडिया रेडियो ने एक काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिसमें कि लोगों को काउंसलिंग दी जाती थी। 2001 में हमारे ज्ञानवाणी चला, जो कि एजुकेशनल FM रेडियो चैनल प्रारंभ किया गया, जिसमें कि ये आपके कुछ NGOs ने भाग लिया, इग्नो ने, NCERT, UGC, IITs और भी कोई ऐसी बॉडीज थी जो कि कार्यक्रम अपने तैयार करके देते थे, और वो हम लोग ज्ञानवाणी के माध्यम से प्रसारित करते थे। ये रेडियो का इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ क्योंकि रेडियो का कवरेज बहुत ज्यादा है। पूरे शायद देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां की रेडियो नहीं पहुंचता है, जबकि टेलीविजन के साथ में ये है समस्या है, उसकी सीमा है कि हर जगह हम टेलीविजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज की डेट में जो प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम आता है, वो रेडियो पर ही प्रसारित करते हैं, रेडियो से ही सब लोग लिंक करते हैं, क्योंकि वो सभी जगह सुना जा सके। तो ये बात थी हमारी कि बैकग्राउंड में कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पहले हमने किन किन चीज को प्रयोग किया है ज्ञान के प्रसारण में। अब नई शिक्षा जो 2020 की, इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी जो एजुकेशन का कोई भी स्टेज हो, उसमें टेक्नोलॉजी के प्रयोग की बात कही गई है। चाहे जो अपना इस समय जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, चाहे उसमें जो पहले 5 साल की 3 से 8 साल के बच्चों के लिए हो, जिसमें कि हम लोग सेकेंड क्लास तक के बच्चों को मानते हैं, उसमें इसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। या दूसरा जो +3 का है, जो प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें कि 8 साल से 11 साल के बच्चों को एजुकेशन देने की बात कही गई, कक्षा 3 से लेकर के 5 तक। या उसके बाद फिर +3 में मिडिल स्टेज है, जिसमें कि 11 वर्ष से 14 वर्ष के छात्रों को या कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को एजुकेशन देने की बात कही गई। या फिर +4 जो सेकेंडरी लेवल का है, जो 14 साल से 18 साल के बच्चे, जिसमें कि 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को एजुकेशन देने की बात कही गई हो। या डिग्री हो या हायर एजुकेशन, PG लेवल के एजुकेशन हो, प्रत्येक लेवल पे टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई है। इवन छोटे छोटे बच्चे जो कि 3 साल के, 3.5 या 4 साल के, उनके लिए भी कहा गया कि इनको गेम के द्वारा, कंप्यूटर के माध्यम से गेम के द्वारा इनको सिखा दिया जाए, उसके लिए भी ऑनलाइन प्रोग्राम देने की बात कही गई है। एजुकेशन के जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी प्रक्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो आपका एडमिशन हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे लर्निंग हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे इवैल्यूएशन हो, चाहे रिजल्ट प्रिपरेशन हो, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बात, इस्तेमाल करने की बात कही गई है। और इसी तरह से जो शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं, चाहे वो जनरल एजुकेशन हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, चाहे टीचर एजुकेशन हो, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे लाइफ लॉन्ग या अडल्ट एजुकेशन हो, या स्पेशल एजुकेशन हो, वहां पे भी जो टेक्नोलॉजी है उसको, उसके माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई है।
जो हमारा हायर एजुकेशन लेवल का है, तो हायर एजुकेशन लेवल को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में या पूरे एजुकेशन को स्मूथ फंक्शनिंग के न्यू एजुकेशन जो इस समय हमारे पास जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है या और हर उसकी सब्जेक्ट की हर प्रोफेशनल कोर्सेज की अपनी अपेक्स बॉडी है, इसमें ये कहा गया है कि एक इंडियन कमीशन ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन किया जाएगा और इस एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 4 बॉडी इन्होंने बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल को एक रखा है, दूसरा नैक को रखा है, तीसरा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल बनाने का प्रस्ताव है और चौथा जनरल एजुकेशन काउंसलिंग बनाने का प्रस्ताव है। इन 4 जो बॉडी है मेन ये काम करेंगी, पूरा नियंत्रण रखेंगे, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम करेंगी। और जो इस समय की जो बॉडीज है जैसे टीचर एजुकेशन में एनसीटी है या पीसीआई है या और भी जो भी जितनी बॉडी है, इनका काम होगा कि अपने फील्ड में जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने के लिए काम करें। ये शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी का विकास किस प्रकार से हम लोग करें, जो मैंने कहा था पहले भी कहा था कि जो एनईपी 2020 है उसमें एक रखा गया है कि कैसे तकनीक का इंटीग्रेशन करें और दूसरा रखा गया है कि कैसे ऑनलाइन जो एजुकेशन हमारी या डिजिटल एजुकेशन है उसका तर्कपूर्ण ढंग से न्याय संगत तरीके से सब लोगों को दी जाए। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग के जो प्रमुख जो उन्होंने उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो था कि छात्रों के प्रवेश एवं अटेंडेंस की प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करना, परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सुधार करना, शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक शोध की प्रक्रिया में सुधार करना। ये मुख्य रूप से ये इन्होंने जो लक्ष्य थे वो लक्ष्य निर्धारित किए थे। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई इसमें पॉलिसी मेकर का यह मानना था कि शिक्षा और तकनीकी के मध्य में बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। इसमें ये मानते हैं कि शिक्षा तकनीकी को मजबूत करती है और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करती है, इसलिए इन दोनों के मध्य जो है एक बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। सरकार ने जो डिजिटल इंडिया कैंपेन 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया था, उसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी को इस्तेमाल करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे ये कहा है। और ये कहा है कि जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है उस डिजिटल इंडिया कैंपेन का विस्तार किया जाएगा, उसमें जो उसके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका विस्तार किया जाएगा और उसके माध्यम से हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कहा गया है कि यह तो महत्वपूर्ण है कि छात्र क्या सीखते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि छात्र कैसे सीखते हैं। इसके लिए टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें टेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट मीन्स है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है या आपके स्मार्ट बोर्ड है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइस है या अन्य जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उनके इस्तेमाल करने की बात कही गई है। अब कैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी को या कैसे हम टेक्नोलॉजी के एजुकेशन के फील्ड में इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कौन उसका नियंत्रण करेगा, इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बॉडी बनाई है जिसको कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम कहा गया है। और ये नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो फोरम होगा, ये फोरम पूरे कहाँ देश में शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करें जिससे कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम अपने छात्रों को दे सके, हम शोध कार्य में वृद्धि कर सके। उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बार बार जो है अपने सुझाव देगी और स्वतंत्र रूप से देगी, इसके ऊपर किसी का भी जो है इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा।
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ये भी कहा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी के दो डिफरेंट एरिया है हमारे एजुकेशन के या शिक्षकों में, जो उनमें जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी बढ़ानी है, उसके लिए भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएंगे। और ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर केवल हिंदी अंग्रेजी में नहीं होंगे, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में बनाने का प्रयास किया जाए कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर सभी भारतीय भाषाओं में बनाए जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये कहा है कि जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम एजुकेशन देते हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। इस फॉर्म पर जो ये प्लेटफॉर्म है, इस पर अपलोड करने के लिए राज्यों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं एवं NCERT या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी या CBSE या NIOS और भी जो अन्य जो संस्थाएं हैं, उनसे कहा जाएगा कि वो ई कंटेंट डेवलप करें और ई कंटेंट इस जो दीक्षा का प्लेटफॉर्म है, इस पे अपलोड किए जाएंगे। और जिसके माध्यम से कि हमारे जो छात्र हैं या हमारे शिक्षक हैं, जो भी चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन एजुकेशन है हमारी, चाहे औपचारिक अनौपचारिक है, उसमें इसका प्रयोग किया जा सके। विद्यालयों में अध्यापकों को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड उपकरण दिए जाएंगे, जिससे कि वह ई कंटेंट को अपने क्लासरूम में प्रयोग किया कर सके, ऐसे इनकी व्यवस्था है। इस पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि दीक्षा और स्वयं जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म हैं, उनको विद्यालयों से जोड़ा जाएगा, जिससे कि छात्र अध्यापक उनका प्रयोग कर सकेंगे एवं उपलब्ध ई कंटेंट की रेटिंग या रिव्यू भी कर सकेंगे। जो भी उनको ई कंटेंट या मिलेगा उस पे, उसको रिव्यू कर सकेंगे, उसकी रेटिंग करेंगे, रेटिंग के फीडबैक देंगे और फीडबैक के बाद इसमें सुधार किया जा सकता है आगे, ताकि इसको बहुत सरल बनाया जा सके। इस पॉलिसी में शिक्षकों में इनोवेटिव टीचिंग एवं टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कंटिन्यूअस प्रोग्रेस डेवलपमेंट स्कीम की बात कही गई है, जिसमें कि शिक्षक लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इनोवेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह 50 घंटे परफॉर्मेंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा। और टीचर में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यह व्यवस्था की गई है कि NCET द्वारा 2022 तक NCERT और SCERT के सहयोग से नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स ये डेवलप किया जाएगा। और जो उन्हीं नेशनल जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, उन्हीं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के माध्यम से टीचर्स में जो उसके कॉम्पिटेंसीज होंगी वो डेवलप की जाएंगी। दूसरी चीज आती है कि जो ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन है, कि उसको कैसे हम दे सके सभी लोगों को, ताकि सभी उसका लाभ उठा सके। इसमें इन्होंने जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसका भी जिक्र किया है और ये कहा है कि नई परिस्थितियों एवं वास्तविकताओं की चुनौतियों से लड़ने के लिए नई पहल जरूरी है। और इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि संक्रामक बीमारियों वैश्विक महामारी में खासी वृद्धि हुई है वर्तमान समय में। ऐसे समय में जबकि पारंपरिक माध्यमों से शिक्षा देना संभव न हो, हमें वैकल्पिक साधनों के लिए तैयार होना पड़ेगा। वैकल्पिक साधन के रूप में ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन को हम प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने छात्रों को दे सकें। डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि इसके लिए हमें ऑनलाइन शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा और इन समस्याओं को कम करने का प्रयास करना होगा। समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय संगत रूप से ऑनलाइन शिक्षा को पहुंचाने हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है कि डिजिटल एजुकेशन को प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त ढंग से प्रशिक्षण देना होगा, जिसमें कि ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन का प्रयोग शिक्षक आसानी से अपनी क्लास में कर सके
और कुछ सुझाव दिए हैं या कुछ व्यवस्थाएं रखी हैं कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन जो एजुकेशन होगी उसका विस्तार कर सकेंगे। उसमें ये कहा गया है कि एक तो पायलट सर्वे किए जाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन की कठिनाइयों उनके सुधार हेतु। आपका NCTE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, IGNOU, IITs और NITs के द्वारा पायलट सर्वे किए जाएंगे, जिसके आधार पर ऑनलाइन एजुकेशन की कठिनाई को कम किया जाएगा और उसके बाद उसको जो भी संस्थान होंगे जो अपने सुझाव हैं वो सरकार को उपलब्ध कराएंगे। दूसरा ये कहा गया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, जिससे कि देश के सभी क्षेत्रों में डिजिटल एजुकेशन पहुंचाई जा सके और इसे सरल बनाई सके। आगे इस डॉक्यूमेंट में कहा है कि ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म होंगे और टूल्स होंगे उनका विस्तार किया जाएगा। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है, ये डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो तरफा वीडियो और दो तरफा ऑडियो इंटरफेस उपकरण आवश्यक है। इसलिए ई लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है, दीक्षा है या स्वयं है, इनको यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिससे कि हम आसानी से हमारे जो छात्र हैं या हमारे शिक्षक हैं वो इनका प्रयोग कर सकेंगे। एक चीज ये कही गई कि जो डिजिटल डिपोजिटरी तैयार की जाएगी, इसके लिए कहा गया है कि इसमें कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स, सिमुलेशंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी सहित ई लर्निंग कंटेंट की डिजिटल डिपोजिटरी बनाई जाएगी, जिसपे कि छात्र फन लर्निंग के द्वारा सीख पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। इंटरनेट के साथ साथ टीवी, रेडियो और कम्युनिटी रेडियो और स्मार्टफोन इनके प्रयोग करने की भी बात कही गई है कि इनका प्रयोग जो एजुकेशन के फील्ड में किया जाएगा और छात्रों अध्यापकों को ई कंटेंट, ई लर्निंग मटेरियल उनकी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। देखा कि तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में ही यदि मटेरियल उपलब्ध है, या बांग्ला नहीं आती, बांग्ला में ही मटेरियल उपलब्ध है, तो हमें चाहिए कि सभी भाषाओं में जो ये ई कंटेंट हो वो डेवलप हो। इसीलिए उन्होंने राज्यों को और जो डिफरेंट संस्थाएं हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है। आगे बात कही गई कि जो वर्चुअल लैब है, इनको बनाने के लिए दीक्षा जो हमारा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है या स्वयं प्रभा जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनका उपयोग किया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा, उनमें सुधार किया जाएगा। आगे कहा गया है कि छात्रों एवं शिक्षकों को पहले से ही लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट दिए जाएंगे, जिससे कि वो पहले से लोड की गई सामग्री को प्रयोग कर सकें। और आगे इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि ऑनलाइन मूल्यांकन एवं परीक्षाएं कराने के लिए जो परख या NTA या स्कूल बोर्ड आदि जो संस्थाएं हैं वो इनकी रूपरेखा बनाएंगी कि कैसे हम लोग ऑनलाइन जो एजुकेशन, ऑनलाइन जो हमारा इवैल्यूएशन है उसको आसान करेंगे और उसका जिसके बढ़िया अच्छी तरीके उसका प्रयोग किया जाएगा। और फिर आगे डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि जो हमारी ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस के को अगर हम उनका उदाहरण छोड़ दें तो हम लोग केवल अगर हमारी फेस टू फेस क्लासरूम की टीचिंग है तो हम अपने बच्चों के सामने जाते हैं, जो हमारा लेक्चर होता है बच्चों के सामने उसको दे देते हैं। अगर हमें कोई फिगर बनाना होता है तो ब्लैक बोर्ड पर बना देते हैं, कोई भी डायग्राम बनाना हो तो उसको हम ज्यादा हम चार्ट और मॉडल के माध्यम से बच्चों को बता देते हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा कि ब्लेंडेड मोड को दें, जिसमें कि हम क्लासरूम में फेस टू फेस टीचिंग करेंगे, उसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। यदि हमें कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं और उन्हें हमें तुरंत आवश्यकता है कि हमें इस पे हार्ट का फिगर अपने बच्चों को दिखाना है, तो हम तुरंत उसको डाउनलोड करके और हार्ट का जो फिगर होगा, जो चित्र होगा, उसको ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। या बच्चे जो किताब से पढ़ते हैं, किताब के साथ साथ वो अपना इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल इसका भी करें।
तो ये चीजें बताई गई है। एजुकेशन पॉलिसी है दो चीजों के लिए कि टेक्नोलॉजी का कैसे हम लोग उसमें इंटीग्रेशन करेंगे और ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे मजबूत करेंगे जिससे कि हम सारे देश में उसको फैला सकें। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं बहुत बढ़िया चीज गवर्नमेंट ने कही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी चीजें प्रस्तावित हैं। इनका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि कैसे जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया जाएगा, उस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। पूरी की पूरी दारोमदार जो हमारा है वो उस प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे निर्भर करता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस है। देखिए, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की कमी है। अगर मैं चाहूं कि मैं अपने क्लास में टेक्नोलॉजी का यूज करूं, स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है, इंटरनेट मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मुझे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। और ऐसी कोई व्यवस्था हमारे स्कूल्स में या हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे महाविद्यालय में नहीं है कि वो टीचर के साथ में किसी टेक्निकल आदमी को लगा दें कि हाँ उनकी टीचिंग में वो मदद करेगा। दूसरा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। हमारे पास कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें कि हम इंटरनेट की व्यवस्था कर सकते हैं या स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था कर सकते हैं? नहीं है, बहुत कम है। तो अगर आपको इसको लागू करना है, इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से आप दें। तीसरा, हमारे पास जो पावर सप्लाई है उसकी स्थिति हम सभी लोग जानते हैं कि कब चलते चलते बिजली चली जाए तो कितने घंटे बिजली आती है हमारे पास में, वो हम लोग के पास बड़ी समस्या है। तीसरा ये है कि हमारा जो एटीट्यूड है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। नहीं तो अधिकांश लोगों में एक टेक्नोफोबिया है। वो सोचते हैं कि छोड़ो, कौन कंप्यूटर का यूज करे, कौन टेक्नोलॉजी का यूज करे, उससे बढ़िया तो हम लोग अपने आराम से बोल करके बच्चों को बता देंगे। बेसिक जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसकी हमारे पास कमी है। सभी जगह इंटरनेट की जो एक्सेस है वो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमें जो प्राविधान है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए दिए गए हैं, यदि हमें उन्हें सक्सेसफुल बनाना है तो हमें इसके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाते समय और ध्यान में देना पड़ेगा कि क्या क्या कमियां हैं। डॉक्यूमेंट में कहा गया है, जिन कमियों को मैं आपको गिना रहा हूं, इन कमियों के बारे में डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि हाँ ये कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट किया गया है और कहा गया है कि इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इसका ऐसे नहीं कि हम इसको एकदम से हमने बनाया और उसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाला लागू कर दिया। इसके अपने इनके लॉन्ग टर्म गोल हैं और 2040-2045 तक भी चीजों को लागू करने की बात कही गई है, जबकि उसको पूरी तरह से जो फुल्ली फंक्शनल जब पॉलिसी होगी तो 2040 तक का भी उसमें जिक्र किया गया है। तो ये थी जो मेन चीजें थी जो ये NEP 2020 में कही गई थी कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मुझे समय देने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा प्राचार्य जी को भी और IQAC और NAAC स्टीयरिंग कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स के लिए कि आपने मुझे बुलाया, और सभी साथियों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे पेशेंसफुली सुना। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति की आपकी। इतना शानदार तरीके से, इतनी आसान भाषा में आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विभिन्न बिंदुओं को विस्तृत रूप से व्याख्यात किया। चाहे फिर वो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो कि वो पूरे टेक्नोलॉजी के यूज को एजुकेशन में रेगुलेट करेगी, चाहे वो ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म का जिक्र आपने किया हो, दीक्षा हो, स्वयं या स्वयं प्रभा चैनल हो, डिजिटल डिपॉजिटरी के बारे में आपने विस्तृत रूप से बताया, स्मार्टफोन, रेडियो, इंटरनेट जैसी इन सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके बारे में भी आपने विस्तृत रूप से बताया। ई कंटेंट सभी भाषाओं में बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बहुत जरूरी होगा। वर्चुअल लैब्स के बारे में आपने विस्तृत रूप से बताया।
अच्छा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्पेशली आपने बताया कि एजुकेशन पॉलिसी को अगर लागू करना है तो इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आवश्यक होना चाहिए। समस्याओं की और भी आपने ध्यान हमारा आकर्षित किया, चाहे फिर वो रूरल एरियाज में नेटवर्क की कमी हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की समस्या हो, डिवाइसेस की अनअवेलेबिलिटी हो, या टेक्नोफोबिया हो, और कंप्यूटर की कम ज्ञान होना भी, ये कुछ ऐसी बाधाएं होंगी। लेकिन लक्ष्य जैसा कि आपने बताया कि ये एकदम हासिल में नहीं होगा, इसके लिए प्रस्तावित समय है 2030 और 40 तक ये संभवतः अपनी सही रूप में हम लोग इसको जान पाएंगे और अपना पाएंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बेहतरीन लक्ष्य के लिए। थैंक यू सो मच सर। आगे एक इसी क्रम में मैं और आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था आपसे कि एक विशेष व्याख्यान भी है, वो है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग पर, जो प्रस्तुत करेंगे अभी आदरणीय डॉक्टर कमल सर, विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग। आप इग्नू के कोऑर्डिनेटर भी है और IQAC के कोऑर्डिनेटर हैं। सर के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन कुछ सूक्ष्म में मैं आपको बताता हूँ। सर presently he is working as head department of zoology and coordinator IGNOU Study Center Bareilly College Bareilly. Sir has more than 30 years of teaching experience. More than 50 research papers are published in national and international journals. He has attended more than 50 national and international conferences. He worked as chairperson, expert, resource person, judges in oral and poster presentation and different science exhibitions and conferences. Under the supervision of Dr. Kamal Saxena sir, more than 18 students have awarded their PhD. Sir elected member of Indian Science Congress Association. He is a life member of several scientific societies and bodies. Sir was awarded GRF from UGC and SRF and Research Associate from CSIR. Sir has completed one major research project and 2 minor research projects funded from UGC. Sir, I welcome you और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग पर व्याख्यान है आप प्रस्तुत करें। म्यूट सर, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Respected Dr. Rajesh Prakash Ji, Dean Higher Education Officer Bareilly Zone. प्रोफेसर बी आर कोकरेती जी, हेड डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन लाइफ साइंसेस MJP University, Dr. Anurag Mohan जी, प्रिंसिपल ऑफ अवर विश्वविद्यालय लिखा था। तो जब वो आए तो हम लोगों ने सबसे पहले यही पूछा, क्या गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की तरह कोई खुली यूनिवर्सिटी इस तरह की आप इंडिया में चलाने जा रहे हैं? जैसे नो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक डिफरेंट प्लान है। तो उन्होंने बैठ के हमको सारा प्लान समझाया और उस समय हम लोगों ने फिर शुरू किया था कि किस तरह से वो लोग जो एजुकेशन रेगुलर नहीं पा सकते और उसके बाद कुछ इस तरह का करते हैं, जॉब करते लोग या बिजनेस करते लोग या ऐसे लोग जो मतलब किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। इग्नू में आप ये मान के चल दिए मोर देन 80 इयर्स के लोग भी स्टूडेंट बन जाते हैं और एजुकेशन में कहीं ना कहीं से डिफरेंट टाइप के कोर्सेज में वो एजुकेशन के लिए आते हैं और बहुत मन से इग्नू में पढ़ाई करते हैं।
तो इसमें मतलब ये महसूस हुआ कि एजुकेशन की कोई एज नहीं होती। तो एक लर्निंग एट एनी स्टेज इन द लाइफ कहीं ना कहीं इन्होंने डेवलप किया, लर्निंग एजुकेशन फॉर एवरीवन। तो एक मेरे लिए मैं फिर क्लियर कर दूं कि बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बरेली कॉलेज, आई एम ए टीचर इन बरेली कॉलेज। और आज भी मैं फिर अगर कहूँ शायद दो चीजों को कंपेयर करूं तो मैं बरेली कॉलेज का टीचर होना अपने आप को बहुत सौभाग्य की बात समझता हूँ। और मेरे साथ जितने प्यार से स्टूडेंट जुड़ते रहे हैं आज तक, तो शायद लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया। लेकिन एक मौका मुझे एक अलग तरह के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ने का मिला। मैं कंपेयर नहीं करूंगा दोनों को, क्योंकि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं और भारत में जब भी कभी सुना हो तो गुरु शिष्य परंपरा रही है, जिसका हम लोगों ने हमेशा आदर किया है। तो बरेली कॉलेज में मैं एक स्टूडेंट की तरह आया और अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ को बढ़ूंगा। तो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए मैंने पीढ़ियां बरेली कॉलेज के अंदर से 3 पीढ़ियां गुजरती हुई मैं देख लूंगा। लेकिन एक डिफरेंट तरह का एजुकेशन सिस्टम था जिसमें हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की, और शायद वहीं से एक जो टेक्नोलॉजी आज जिसे हम नई कह रहे हैं, हम लोगों ने उसको वही 85 में जो इग्नू बनी और 86 में टीम ने आकर के बरेली कॉलेज को एक स्टडी सेंटर की तरह से रिकॉग्नाइज किया था। तो वो एक टाइम था जब हमने इस टेक्नोलॉजी को सीखा कि किस तरह से, उस टाइम में सीडीज नहीं होती थी, वीडियो कैसेट्स होते थे, कि कैसे हम लोग अपने लेक्चर का वीडियो कैसेट बना सकते हैं और कैसे उन स्टूडेंट्स को क्लास में वीडियो कैसेट दिखाने के बाद में एक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड। तो एक नए एजुकेशन सिस्टम था उस समय हमारे लिए। और मैं फिर शेयर करूंगा, कोई एज ग्रुप नहीं था, कोई जॉब करते हुए लोग नहीं थे। तो उस टाइम में बरेली के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और एसएसपी थे, उन्होंने तक इग्नू में हम लोगों के साथ कोर्सेज ज्वाइन किए थे और हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था कि जॉब करते हुए लोगों के साथ इग्नू में किस तरह से काम किया जा सकता है और कैसे उनको एजुकेशन देने की बात की जा सकती है। तो एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इतने लंबे सालों का। आज जो कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, इसमें इग्नू को सेंट्रल लेवल पर जोड़ा जा रहा है, इसलिए कि ये जो हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, ये इग्नू इसमें शुरू से जुड़ा रहा है। मैं फिर अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, आई एम स्टिल enjoying as a teacher who is teaching on blackboard, who is discussing with more than 50 or sometimes 70-80 students। शायद मुझे उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हम लोग एक नए एरा में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हमारे साथ है। तो हम अगर कहीं बात करें तो कहीं उस टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी एक नए एरा में, नए जमाने में बढ़ना होगा, जिससे कि हम कहीं पीछे ना रह जाए। तो उस सारी कंडीशंस को लेकर के हम अगर इग्नू में बात करें तो एक ओपन एजुकेशन सिस्टम था। मैं थोड़ा सा आपसे इस चीज को शेयर करता हूं कि ओपन एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से हम इग्नू के साथ जुड़ करके और चीजों को ला सकते हैं। राजेंद्र सर, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सब लोग देख पा रहे हैं? तो इस तरह से अगर हम इग्नू की बात करें तो हम एक ऑनलाइन, जी सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर, थैंक यू। एक ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम हमने इग्नू के साथ शुरू किया था। और इसमें थोड़ा सा आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि इग्नू ने इंटरनेशनल लेवल पर कहीं आगे बढ़ने के लिए ये 2000 में एक इंटरनेशनल लेवल का ज्वाइंट एक प्रोग्राम किया था, एंड आई वाज लकी दैट आई वाज सिलेक्टेड फॉर अटेंडिंग दैट प्रोग्राम। तो हम लोगों ने 2000 में इग्नू हेडक्वार्टर पे रह के, उसी टाइम में जापान गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में इग्नू में मीडिया सेंटर पूरा डेवलप किया गया था। तो वी वर लकी कि हमारे सामने ही उसका इनॉग्रेशन हुआ और हमको भी वो मीडिया सेंटर यूज करने को मिला। तो शायद हम ये समझ पाए कि मीडिया का यूज कैसे किया जा सकता है। जिन चीजों को आज हम कॉमन लेवल पे डेवलप करते हैं या हर किसी के लेवल कराने की बात करते हैं, 2000 में जब मैं इग्नू में था और वो 2 वीक्स का मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था, तो सब ऐसा लगता था जैसे कुछ सपना है जो हमें दिखाया जा रहा है और हम अपने आप को लकी समझते थे कि इसके साथ जुड़ने का मौका हमको मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को बात करते हुए हम अगर आज प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कोविड-19 में
एक आउटब्रेक है हमारे साथ एंड वी आर सफरिंग विद दैट प्रॉब्लम। द नंबर ऑफ पर्सन्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पेंडेमिक जो है उसमें हम लगातार, और आप रोज न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि हर डिफरेंट स्टेट्स में होता है कि स्कूल और कॉलेजेस को खोला जाए या ना खोला जाए। अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराए जाएं कि ना कराए जाएं। एवरी डे वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वी आर स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ इन न्यूज़पेपर्स। अलग अलग व्यूज होते हैं लोगों के। तो इस सिचुएशन से जब हम गुजर रहे हैं तो एजुकेशन को भी हमें ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन की फॉर्म में देना जरूरी हो गया। तो अब कहीं हम बात वर्चुअल क्लासेस की करने लगे कि कहीं वर्चुअल क्लासेस हो जिसमें टीचर अपने घर पर बैठा हुआ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। मैं फिर आपको वहीं लौटा रहा हूं सेंटेंसेस को कि अपने क्लास में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। चौक डस्टर हाथ में हो, पसीना बह रहा हो, बहुत मजा आता है। लेकिन इन कंडीशंस में जब हमारे साथ कहीं कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन स्टूडेंट तक कैसे पहुंचा सकें। तो दिस इज अनदर मेथड। सो ऑनलाइन लर्निंग और वर्चुअल क्लासेस these are offered by using इंटरनेट। तो इंटरनेट को कहीं मिड 1990 की बात जो हम कर रहे हैं वही इंटरनेट और WWJ या हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं वहां शुरू हुआ था। और वही चीज मैं जोड़ रहा हूँ कि 2000 में जब वो लैब डेवलप हुई थी वहां पे पूरी, तो हम लोगों ने उसको वहां स्टडी किया था। तो यहाँ कहीं भी हम ई लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, कहीं इस तरह के टर्म्स आज हम यूज कर रहे हैं। उससे पहले कुकरेती जी ने डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको बहुत अच्छे से आप लोगों को सबको डिटेल में बताया है। मैं उन पॉलिसीज पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि उन पॉलिसीज को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली हम इग्नोव में यूज कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो हम उसकी थोड़ा सा आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इस फील्ड में वो आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं हम जो वेब बेस्ड एजुकेशन है उसको हम लगातार पिछले 30 सालों से यूज कर रहे हैं। तो इग्नोव की अगर हम बात करें तो 1985 का में एस्टेब्लिश हुआ इग्नोव। मोर देन 3 मिलियन लर्नर्स हैं इस समय। मोर देन 2600 लर्नर सपोर्ट सेंटर्स या जिन्हें हम स्टडी सेंटर्स कहते हैं वो हैं, और 29 ओवरसीज पार्टनर इंस्टीट्यूशंस भी हैं इग्नोव के पास। आज की डेट में इग्नोव 228 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, डॉक्टर, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम इग्नोव ऑफर कर रहा है। तो 1985 से लेकर जो 35 इयर्स का टाइम गुजर रहा है इसमें हम लोगों ने इग्नोव को ग्रो करते हुए और उसके साथ जुड़ते हुए देखा है कि किस तरह से एजुकेशन के एक दूसरे मेथड को यूज किया जा सकता है। फिर मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आपको बीच में रोक रहा हूँ कि हम लोगों ने जिस समय उस समय एजुकेशन सिस्टम आया था या आज भी मैं कहूँ तो इग्नोव में मैं जैसे अगर साइंस का टीचर हूं तो मैं बीएससी की बात करूं, इग्नोव में बीएससी में वो स्टूडेंट एडमिशन लेता है जिसका किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। जिस समय हम इग्नोव की बुक्स उठाते हैं, उसका सिलेबस देखते हैं, तो हमारे सामने एक दिल्ली का सिलेबस होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में पढ़ाया जा रहा होता है और उन्हीं के प्रोफेसर्स का वो सिलेबस डिजाइन किया हुआ भी होता है। अब सोचिए आपके सिलेबस वो जो जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, बच्चा वो जिसको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला या जो कहीं पढ़ाई छोड़कर जॉब कर रहा है और अपने पार्ट टाइम की तरीके से बीएससी करना चाह रहा है, वो जिस समय आता है और लैब में हम उसको वो एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं जो कि हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं होते, शायद उनसे कुछ ऊपर की चीज होती है। तो अब ये सोचिए दोनों चीजों का एक ब्रिज जो होता है बनाना कि स्टूडेंट वो जो शायद कम कैटेगरी वाला है और स्टडीज वो जो इंडिया में बेस्ट पॉसिबल स्टडीज हो सकती हैं या सिलेबस हो सकता है, उन दोनों को मैच कराना हमारा काम होता है। तो मैं जो कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता हूं, तो आप ये सोचिए कि उन लोगों के साथ डील करना पड़ता है जो सोसाइटी के एक तरह से तो कहिए, मतलब मैं नेग्लेक्टिव वर्ड यूज करूं या ऐसे कहूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको एजुकेशन देना और क्वालिटी एजुकेशन देना, इन दो चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो लास्ट 35 ईयर से इग्नोव में हम लोग यही सब करते हुए आ रहे हैं और मोटो वही था, रीचिंग द अनरीच्ड, कि कैसे हम वहां तक पहुंच पाए जो अनरीच्ड है। हमने पहुंचने की कोशिश की है और इन 35 ईयर्स में जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस इग्नोव के साथ रहे हैं वो बिल्कुल
डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद बरेली कॉलेज का टीचर होने के साथ उनसे दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जिनको कंपेयर करना मुश्किल होता है। तो वही मैं कहूँ, नॉर्मल एजुकेशन और जो ओपन एजुकेशन है, ओपन सिस्टम वाली, उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम जाते रहते हैं, इग्नू के बारे में बताते रहते हैं। कंडीशन वो है कि इग्नू के कोर्सेज में ज्वाइन कराने के लिए जो कैंप्स लगाने पड़ते हैं, इग्नू को गांव में जाकर कैंप्स लगाने पड़ रहे हैं कि वहां से गांव के लोगों को जो कि नहीं पढ़ रहे हैं उनको समझाएं कि किस तरह आपको एक दूसरा मेथड है जिससे हम आपको पढ़ा सकते हैं। सो presently study centers are running all over the country and with the development of internet, smartphone, tablet, सब कुछ मिलता है। आज की डेट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं और मोबाइल पे कोई बच्चे कुछ पढ़ रहे होते हैं और जब इग्नू दिखता है तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो बताते हैं सर हम इग्नू के स्टूडेंट हैं, हम अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, बस जितना टाइम हमको लोकल ट्रेन में या कहीं लग रहा है अपने मोबाइल पे हम बैठे पढ़ते रहते हैं। तो इसका मतलब ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है और आज से नहीं है। इग्नू में मैं आपको जो बता रहा हूँ शुरू हुआ था तभी हमारे पास आज भी रखे हुए हैं जो अब यूज कम होते हैं। कम से कम 200 वीडियो कैसेट्स आज की डेट में मेरे स्टडी सेंटर पर है। तो वो वीडियो कैसेट्स हम तब उन्हें दिखाया करते थे। उसके बाद वीडियो कैसेट्स को रिप्लेस सीडीज ने किया। सीडीज के बाद आज वो सारे के सारे वीडियो कैसेट्स या कहूं मैं वीडियो प्रोग्राम्स वो सब के सब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप जाइए, क्लिक कीजिए, कोई भी इग्नू के वीडियो प्रोग्राम को देख सकता है। तो हमने कहा वीडियो ऑडियो कैसेट से शुरू किया, फिर हम उसके बाद वीडियो कैसेट्स पे आए। पर आप ये सोचिए कि क्लासरूम में हमें वो वीडियो कैसेट चलवाना, स्टूडेंट्स को दिखाना और उसके बाद टीचर और स्टूडेंट्स के बीच उस वीडियो कैसेट में जो कुछ देखा उस पर डिस्कशन करना, ये एक बिल्कुल नए तरह का सिस्टम था जिसको हमने इतने लंबे टाइम तक चलाया। और फैक्ट ये कहूं कि मैंने बहुत कुछ सीखा। कोऑर्डिनेटर होने के नाते ठीक है मैं कह दूं कि चेयर पे बैठा हूं, लेकिन मैं इग्नू के टीचर के नाते अगर मैं कहूं या काउंसलर जिसको हम कहते हैं, तो मैंने बहुत कुछ इग्नू से सीखा कि किस तरह से एक आम स्टूडेंट के साथ जोड़कर उस तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सकता है। तो जो भी ऑनलाइन सिस्टम है उनको हमने यूज किया। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इग्नू में एडमिशन प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है। कई सालों से शुरू में उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए थे और अब आज की डेट में टोटल ऑनलाइन एजुकेशन है। हम लोग इंडक्शन मीटिंग जो पहले ऑडिटोरियम में किया करते थे और स्टूडेंट को सबको समझाया करते थे, अब इस कोरोना पीरियड में हम इंडक्शन मीटिंग भी बराबर ऑनलाइन कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। और मैं आप लोगों को एक सब चीज बता दूं कि इस कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट ने इग्नू को कुछ इस तरह से किया है कि पहले केवल ये होता था कि हर स्टूडेंट को पासवर्ड मिलता था और वो इग्नू के स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ सकता था, या जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का ऑप्शन देते थे केवल उन्हीं के लिए अवेलेबल होता था। आज इस कोरोना पीरियड में इग्नू ने अपने स्टडी मटेरियल को ओपन फॉर ऑल कर दिया है। कोई भी आप लोगों में से इग्नू की वेबसाइट पर जा सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इग्नू का स्टडी मटेरियल केवल इग्नू में ही नहीं अब कहीं भी यूज किया जा सकता है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं, क्योंकि शुरू में अगर आप ध्यान करें तो साइंस की एजुकेशन मैंने भी जब पढ़ाना शुरू किया था तो इंग्लिश मीडियम ही हुआ करता था। हम लोगों ने धीरे धीरे अडॉप्ट किया है कि हम हिंदी में साइंस पढ़ा पाए। तो इग्नू ने भी शुरू में जितने भी वीडियो कैसेट्स या स्टडी मटेरियल बनाया था दैट वाज इन इंग्लिश। आज की डेट में मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूँ। एक टीम बनाकर जितने पुराने वीडियो कैसेट्स या सीडीज की फॉर्म में हैं उन सबको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। मुझे भी ये काम मिला हुआ है, मैं भी उस ग्रुप का एक मेंबर हूँ और आजकल मैं इसी में लगा हूँ कि जो हम लोगों के बायोलॉजी के वीडियो हैं उन सबको कैसे ट्रांसलेट करके हम हिंदी में कर दें, जो कि हर स्टूडेंट के लिए हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होगा। काउंसलिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बरेली कॉलेज के क्लासरूम्स में हम किसी टीचर के साथ स्टूडेंट्स को बैठाते थे और 2 घंटे का टाइम होता था, वो बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता था। आज वो पॉसिबल नहीं है। हम ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं। कोई भी हम सिस्टम ले लेते हैं, चाहे जूम हो या गूगल का हो, कोई भी गूगल मीट हो, हमने डिफरेंट सिस्टम्स ले रखे हैं। एक टीचर से टाइम दिलवा सकते हैं। जैसे हम आप जुड़े हुए हैं ऐसे ही कोई भी इग्नू का काउंसलर अपना क्लास डिक्लेयर करता है, जैसे काउंसलिंग हम कहते हैं,
और वो ऑल ओवर इंडिया कोई भी इग्नू का स्टूडेंट उसको अटेंड कर सकता है। तो केवल आज अगर बरेली का कोई काउंसलर क्लास कर रहा है या लखनऊ का कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि केवल बरेली या लखनऊ का स्टूडेंट ही क्लास कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी लर्नर इग्नू का या कहीं भी और का उसको ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए फैसिलिटी है। इसके अलावा वही जो मैं आप कह रहा था कि वीडियो सारे के सारे यूट्यूब पे इग्नू ने अपलोड कर दिए हैं। आज की डेट में इंग्लिश में सारे वीडियोस हैं और हम लोग उनको ट्रांसलेट करके और लैंग्वेजेस में भी ला रहे हैं। इसके अलावा एक इग्नू में फैसिलिटी ये है कि आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं स्टडी सेंटर में, मान लीजिए जैसे आर्मी वाले में एक एग्जांपल लेकर आता हूँ कि आज वो जम्मू में है, कल को उनको कहीं आसाम में भेज दिया जाता है, तो ही और शी कैन चेंज द स्टडी सेंटर विद इन नो टाइम। वो ऑनलाइन केवल अप्लाई करें कि मैं यहाँ से दूसरी जगह पहुंच गया हूँ, मेरा स्टडी सेंटर चेंज कर दिया जाए, और विदाउट एनी फी उनको ऑनलाइन ही स्टडी सेंटर चेंज करके इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपका स्टडी सेंटर चेंज हो गया। लर्नर कैन अपीयर इन एग्जामिनेशन एट एनी स्टडी सेंटर ऑल ओवर इंडिया। वो कहीं का भी स्टूडेंट हो जिस समय एग्जाम होता है, जैसे प्रपोज है सितंबर में, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इंडिया के किसी हिस्से का स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हो सकता है। वो एग्जाम फॉर्म भरते समय ऑल ओवर इंडिया कोई भी सेंटर चूज कर सकता है। तो इस तरह से मैं आपको एक और चीज कि जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे मान लीजिए बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, वो साथ में ही कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इग्नू का कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स का, एंड दैट विल बी वैलिड। कहीं भी जाकर अगर वो अपनी डिग्री के साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ओपन यूनिवर्सिटी का शो करेंगे तो वो वैलिड होगा। तो इस तरह की फैसिलिटीज, मतलब मैं केवल इग्नू का नहीं कह रहा हूँ, इस तरह की फैसिलिटीज थी जो हम लोग धीरे धीरे स्टूडेंट्स के लिए या लर्नर्स में कह लूं, क्योंकि किसी भी एज के और कोई भी ऐसे कहिए कि कोई भी काम करते हुए लोग हो सकते हैं, तो हमने उन लर्नर्स के लिए इस तरह की फैसिलिटीज इग्नू या कोई भी और ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो इग्नू में 30% मार्क्स होते हैं असाइनमेंट के, जैसे हम लोग बीच में टेस्ट लिया करते हैं, और 70% मार्क्स होते हैं फाइनल एग्जाम के। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन वेबसाइट पर इग्नू के अवेलेबल होते हैं। एनीबडी कैन डाउनलोड दैट क्वेश्चन पेपर, कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर, एंड इन दिस pandemic situation, after solving the assignment, that assignment can be submitted online. आप इग्नू के वेबसाइट है, उस पे आप उस एड्रेस पे अपलोड कर दीजिए, और वहां से हम लोग इसी तरह चेक कर रहे हैं उस असाइनमेंट को रीजनल सेंटर वाले जो भी इवेल्युएटर है उसके पास मेल से भेज देते हैं। जो इवेल्युएटर है वो वहीं ओपन करके ही अपने लैपटॉप पर उस असाइनमेंट को पढ़ता है और मार्क्स उसमें देने के बाद में रीजनल सेंटर को वापस कर देता है। तो कहीं भी कोई काम रुक नहीं रहा है। असाइनमेंट का इवेल्युएशन भी ऑनलाइन है। स्टूडेंट्स अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कोई भी फोटो लेकर या स्कैन कर उसको भेज सकता है। तो काउंसलर ऑनलाइन असाइनमेंट चेक कर रहा है। अवार्ड्स या अपने एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स इग्नू की उसके एनरोलमेंट नंबर से जैसे ही वो इग्नू की वेबसाइट पर जाएगा, all these things are available online. The student can download these things, can check these things, and if any mistake or if any change is required, that student can apply and that will be done. So this type of online facilities are available. We have more than 50 programs at IGNOU. ये तो मैं आपको एक जनरल सी बात कर रहा था। पहले हम लोग इस तरह की मीटिंग करते थे, देखिए, जिसमें बरेली कॉलेज के पूरे ऑडिटोरियम में भरे हुए लोग होते थे। अब उल्टी बात है कि हम लोग इन कंडीशंस में एक ऑनलाइन मीटिंग सिस्टम हमने शुरू किया और हम इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ या स्टाफ की या हम लोगों की भी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं तो कहीं रीजनल सेंटर के साथ हम लोग मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। तो जब जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये ऑनलाइन एजुकेशन की, हम लोगों ने पिछले 35 ईयर्स में ऑनलाइन एजुकेशन को डे बाय डे ग्रो करते हुए देखा। मैं इग्नू में क्योंकि शुरू से जुड़ा रहा हूँ और आज तक जितने चेंजेस आए हैं इस ऑनलाइन एजुकेशन में, मैंने इग्नू के रीजनल सेंटर पे भी डिफरेंट मीटिंग्स में जाकर, इग्नू के हेडक्वार्टर दिल्ली पर भी जाकर, इग्नू के अलग अलग तरह के कामों से लगातार मैं जुड़ा रहा हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन इसके लिए मुझे रेडियो स्टेशन या टीवी वाले भी अक्सर बुलाते रहे हैं। एक आप मैं शेयर करूं कि न्यूज़पेपर वालों ने भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं कि वो जैसे मुझको बुलाया उन्होंने और वहां से पहले से डिक्लेयर कर दिया
कि ये अवेलेबल होंगे इस 1 घंटे के लिए। इग्नू से रिलेटेड जितने भी लोग हों फोन जागरण ऑफिस या जो भी उनका अमर उजाला ऑफिस वहां पे कर ले, तो वहां पर उस 1 घंटे में फोन आते रहते हैं और हम लोग उनके क्वेश्चंस को सुनकर डिस्कस करते रहते हैं, उनके आंसर्स, और वो हाथ के हाथ उसको पब्लिश भी कर देते हैं कि जिससे और लोगों को भी वह सारे आंसर सुन के अगले दिन के न्यूज़पेपर में दिखाई दे जाए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स बराबर हम लोग करते रहे। मैं सिर्फ इसको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इस ऑनलाइन एजुकेशन के जो भी ट्रेडिशंस हैं, इनको हम अगर यूजफुल हैं तो कहीं अपने इस ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। मैं कहीं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं फिर आपसे कह दूं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बरेली कॉलेज, स्टिल आई एम टीचर इन बरेली कॉलेज बरेली, एंड आई फील प्राउड दैट आई एम डूइंग ऑफलाइन coaching, or you can say offline teaching in Bareilly College.